ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜଗରେ ସ୍ନେହର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଯୀଶୁ ଏବଂ ନବଜୀବନ ବାଣୀକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରେ। ଆଜି ଜୁଲାଇ ମାସର 23 ତାରିଖ ଚତୁର୍ଥ ଗୁରୁବାର। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ମାତା ମଣ୍ଡଳୀ ବାଇବେଲର ଗଭୀର ଅର୍ଥ ବୁଝିବାର ବାଟ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ମାଥ୍ୟୁ ସୁସମାଚାର 13 ଅଧ୍ୟାୟ 10ରୁ 17 ପଦ ପଢ଼ି ସେ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ମନନ ଚିନ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବାଇବେଲ ଖୋଜିବା, ବାଇବେଲ ପାଠ କରିବା। ଆପଣ ବାଇବେଲ ପାଖରେ ଅଛି, ଆପଣ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ସାଧୁ ମାଥ୍ୟୁଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ପୁଣ୍ୟ ସୁସମାଚାର ପାଠ ଅଧ୍ୟାୟ 13 ପଦ ସଂଖ୍ୟା 10ରୁ 17। ଆସନ୍ତୁ ପଢ଼ିବା। ବାକ୍ୟଟି ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଇଛି। ତତ୍ପରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଆସି ପଚାରିଲେ, ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦ୍ୱାରା କଥା କହନ୍ତି? ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟର ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ଜାଣିବାର ସୁଯୋଗ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତାହା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। କାରଣ ଯାହାର ଅଛି ତାକୁ ଅଧିକ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଯାହାର ପ୍ରଚୁର ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯାହାର କିଛି ନାହିଁ ତାହାର ଯାହା କିଛି ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ତାଠାରୁ ବାହାର କରି ନିଆଯିବ। ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦ୍ୱାରା କହେ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଦେଖି ସୁଦ୍ଧା ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ଶୁଣି ସୁଦ୍ଧା ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ ବା ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଯିଶାଇଙ୍କର ଭାବବାଣୀର ସଫଳ ହୋଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ତୁମେ ଶୁଣିବ କିନ୍ତୁ କଦାପି ବୁଝିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ଦେଖିବ କିନ୍ତୁ କଦାପି ଜାଣିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଜଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କର କାନ ଶୁଣିବା ଶକ୍ତି ହରାଇଛି। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଛନ୍ତି, ନଚେତ୍ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆଖିରେ ଦେଖିଥାନ୍ତେ, କାନରେ ଶୁଣିଥାନ୍ତେ ଏବଂ ହୃଦୟରେ ବୁଝିଥାନ୍ତେ ଓ ସେମାନେ ମଣ୍ଡିକଟକୁ ଫେରି ଆସିଥାନ୍ତେ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଧନ୍ୟ ତୁମେ ତୁମର ଆଖି, କାରଣ ତାହା ଦେଖ, ଧନ୍ୟ ତୁମର କାନ, କାରଣ ତାହା ଶୁଣେ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଛି, ଅନେକ ପ୍ରବକ୍ତା ଓ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ତୁମେମାନେ ଯାହା ଦେଖୁଛ ସେସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଓ ଯାହା ଶୁଣୁଛ ସେସବୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆଶା ପୋଷଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ କି ଶୁଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁସମାଚାର। ଈଶ୍ୱର ଗୌରବ ହଉ। ସ୍ନେହର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ବାଇବେଲ ଗୋଟିଏ ଗଣିତ ବହି ନାହିଁ, କି ଛବି ବହି ନାହିଁ, କି ଇତିହାସ ବହି ନାହିଁ ଯେ ଯିଏ ଯାହା ପଢ଼ି ସମସ୍ତେ ବୁଝିଯିବେ। ବାଇବେଲ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଇବେଲ ହେଲା ବାକ୍ୟ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱର। ଏ ବାଇବେଲ 2 ତିମୋଥୀ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 16 ପ୍ରକାରେ ସ୍ୱୟଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରେରଣାରେ ସାଧୁ ସାଧ୍ୱୀମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବାଇବେଲକୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ସହାୟତାରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ସେ ବାଇବେଲକୁ ପଢ଼ି ତାର ଗଭୀର ଅର୍ଥ, ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ସେହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ସହାୟ ଆବଶ୍ୟକ। ନହେଲେ ଆମେ ପଢ଼ିବା କିଛି ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ଅର୍ଥକୁ ଅନର୍ଥ କରି ଆହୁରି ବିପଦଗାମୀ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଅନେକ ଆସି ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁ, ତୁମେ ଉପମା ମାଧ୍ୟମରେ, ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକ କାହିଁକି ବୁଝାଉଛ? କାହିଁକି ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ କଥା କହୁଛ? ସେ ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଣ କାଥଲିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ କାଥଲିକ ଭାଇମାନେ କାହିଁକି ଫଟୋ ଏବଂ ମୂର୍ତ୍ତି ଘରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ଗିର୍ଜାରେ ରଖୁଛନ୍ତି। ଫଟୋ, ଯୀଶୁଙ୍କର, ମା ମରିୟମଙ୍କର ଫଟୋ, ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ାକ ଫଟୋ ରଖାହେଉଛି ଏବଂ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ରଖାହେଉଛି। ଏବଂ ଆମର କ୍ରୁଶପଥ ଯିବା ସମୟରେ ଆମର 14ଟା ଷ୍ଟେସନ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ଫଟୋ ଆକାରରେ ରଖୁଛୁ, ନହେଲେ ତ ଆମେ ମୂର୍ତ୍ତି ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ରଖୁଛୁ। ଏ ଦୁଇଟା ପ୍ରଶ୍ନର ଅର୍ଥ ହେଲା, ବାଇବେଲ ଅର୍ଥ ବୁଝିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଫଟୋ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା, ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଯୀଶୁଙ୍କର ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଯାତନାକୁ ଆମେ ବହି ନ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଛୁ, ବୁଝିପାରୁଛୁ। ଏବେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଛବି ବହି ଦିଆଯାଉଛି। ମନେକର ଲେଖାଥିବ ଏ ଫର୍ ଆପଲ୍, ଆପଲ୍ ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଥାଉଛି। ବି ଫର୍ ବ୍ୟାଗ୍ ବା ବଲ୍ ଲେଖାଯାଉଛି, ବଲ୍ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ରଖାଯାଇଥାଉଛି। ସି ଫର୍ କ୍ୟାଟ୍ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ବିଲେଇର ଚିତ୍ର ରଖାହେଉଛି। ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ, ଛବି ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝିବା ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ପିଲାମାନେ ସହଜରେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତି ଯେ କ୍ୟାଟ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଡଗ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଏଲିଫାଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ, ଟାଇଗର ମାନେ କ'ଣ, ସେ ଫଟୋ ଦେଖି ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବେ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଆମର କାଥଲିକ ସଂସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ରହସ୍ୟର ଫଟୋ ଗୁଡ଼ା ରଖାଯାଇଥାଏ।
त्रैक्य ईश्वर जतरा जीशुर जन्म कहानी आम गुहाल घर में जीशु जन्म गुहाल कुंड सहित जीशुर मूर्ति रखुचु पाखे महामारिया जोसेफ फोटो रखा गाई गोरु रखा तीन पंडित आसी देखा गोटे फोटो आगे ये फोटो माध्यम मूर्ति माध्यम छवि माध्यम आम साधारण ख्रीष्टान मान सहजे प्रभुंर सुसमाचार वाक्य बुझा सहज हो किंतु अण कैथोलिक भाई मैंने आमको उपवास कर मूर्ति पूजा करुँच छवि उपर पूजा करें मूर्ति पूजा करूना बरं मूर्ति द्वारा आम बाइबल पढ़ जो मैंने अशिक्षित लोक अच्छा जो बाइबल पढ़ी जानती ना बाइबल पढ़ती ना बाड़िया जाना केत जानती माँ भौणी मैंने से फोटो देखी मूर्ति देखी मुझे जापर जीशु कषा प्रहार माने कौन जीशु क्रूस मराहला बोले कौन आम से 14टा स्टेशन क्रूस 14टा स्टेशन देखिले कि जीशुर दुख जंत्रणा ताड़न सब आम बाइबल न पढ़ी न किए न बुझेले आम फोटो देखिक बुझीपार ठीक से आज सुसमाचार जीशु से प्रश्न करते कहीं तुम उपमा माध्यम से बुझाच उपमा माध्यम कारण ए बाइबल गभीर अर्थ बुझापी प्रकृत अर्थ बुझापी आम मान को पवित्र आत्मार सहायता दरकार कारण से माथ्यू जॉन 14:26 जीशु कहले जितेबले से पवित्र आत्मा आसवे से शिक्षक सी तुम मान समस्त विषय शिक्षा स्नेहर भाई भूणी मैंने आज से आपणकर माथ्यू 13:15 लिखाई ए माने देखु देखु देखिए देखिपारे नहीं शुणु शुणु बुझीपारे नहीं कारण ए मान हृदय जड़ हो आखि अंध हो आखि केमती अंध है द्वितीय करंथिय 4:4 पद लिखा जाए ए जगतर अधिपति शैतान ए लोक मान आखि को अंध कर तेणु ए मैंने देखी देखु देखी पारती ना कि शुणु शुणु शुणी बुझी पारती ना मंदात्म जगतर अधिपति शैतान आमर आत्मिक आखि को अंध कर आखि आखि केमती अंध है उदाहरण स्वरूप से प्रभु जीशु कहले माथ्यू 6:22-23 चक्षु तुम शरीर प्रदीप ए प्रदीप बा ए आलोक आखि दीटा आमर लाइट ए लाइट जदि लिभिगला आमर समग्र शरीर अंधार हो ए लाइट केतबेला लिभिबो जेतबेला आमे मोबाइल फोन रे ब्लू पिक्चर रे टीवी रे मोबाइल नेट रे बा फेसबुक रे जदि झियो भौणी मानकर पुओ मानकर उलग्नता देखी 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 रहिबा आमर आत्मिक आखि अंध हो उदाहरण सब राजा दाऊद 2 सामुएल 11:1-13 देखंतु राजा दाऊद जन अभिषिक्त राजा राजा प्रासाद उपर से बुलू बुलू से साइड देखले गोटे झील बेर्शेबा गोटे स्त्री लोक गाधोला गाधेवा समय तार देहर अधा उलग्न देखा जाउतिला राजा ताको बारंबार बारंबार देखिबा द्वारा व्यभिचार लालसा पर्नोग्राफी लालसा व्यभिचार लालसा तृषा कामना तार आखि बाट दे राजा दावीद भीतर प्रवेश कला एवं से आत्मसंयत हरै बसिले एवं लोक पठे से स्त्री को घर को डकागला ता संगे सहवास कर गर्भवती कले ए पाप गर्भ को लुचेवाई राजा दावीद से स्त्री बादशेबार स्वामी उरिया को जे सैनिक थिले ताको हत्या करदेले बर्तमान देखो राजा दावीद ए आखि दीटा जन गोटे झील को व्यभिचार कले आ जन को हत्या रक्तपात कले ए आखि दीटा कारण ए आखि अंध हो गला तेणुक सी निजर नियंत्रण हरईदे तेणु स्नेहर भाई भूणी मैंने तेणु प्रभु कहते 2 करंथिय 4:4 लिखा जाए ए जगतर अधिपति शैतान ए लोक मान पृथ्वी लोक मान आखि को अंध कर से माने आज बुझु बुझु पढ़ु पढ़ु शुणी पार ना देखु देखु देखती ना कि शुणी शुणी बुझी पारती ना जदि से माने शुणी थांते ताहेले प्रभु को जदि ईश्वर गौरवर आलोक पाई थांते ताहले से माने प्रभु मन परिवर्तन करते जीशु निकट आसी थांते एवं से अनुतप्त कारण प्रभु पवित्र आत्मा प्रेरण कले जॉन 16:8 जो पवित्र आत्मा आसवे आम चेतनार आत्मा अनुतापर आत्मा पूर्ण करेंगे आम पाशिया को पाप क्षमा करी आम प्रभुंर गौरव आलोक पाइबा जो प्रभु वाक्य शुणा आम आलोक पाइबा कारण साम संगीत 119:105 पद लिखा जाए प्रभु तुम वाक्य मो शरणर प्रदीप चला पथर आलोक ए आलोक जदि आमर आखि बाट आम पढ़ा द्वारा आखि बाटे जाए और शुणा द्वारा कान बाटे जाए से आलोक आम हृदय को आलोकित करे आम ईश्वर गौरवर आलोक महिमा को देखा सक्षम होता स्नेहर भाई भूणी किंतु आज आम विशेषकर झील मानकर माँ भौणी मान उलग्न छवि मोबाइल फोन रे स्मार्टफोन रे देखी देखी
टीवी रे देखी देखी ब्लू पिक्चर देखी देखी उल्लग्न चित्र देखी देखी आम आखि अंध हो चली ए अंध हो आम देखू देखू देखी पारुन शुणु शुणु शुणी पारुन शैतान चाल आम आत्मिक अंध आखि को अंध कर दे। ए आत्मिक आखि जो शैतान अंध कर दे ए आखि केतला खोल देखु एमाउस को जाऊे दिज शिष्य मैंने एमाउस को जाऊे जीशु पुनरुत्थान पर बाटर जीशु माने अजणा भाव में परिचय नदी सांगे गले गले एवं राति घरे रहिले राति जो रोटी भांगिले यज्ञ आरंभ कर रोटी भांगिले रुटी खाऊ खाऊ लोक सुसमाचार 24:30-31 लिखाई जो जीशु रोटी भांगी देले से रुटी ग्रहण करू करू से आखि खुलीगला एवं जीशु को से माने चिन्ह पारे। हालेलुया। तेणु सिनार भाई भणी मैंने आम जदि योग्य भाव में दिव्य यज्ञ जोग दे दिव्य प्रसाद ग्रहण करवा रुटी ग्रहण करवा ताहले आम आत्मिक आखि को जो शैतान बंध कर बंद होमर आखि खुल आम बाइबल पढ़ले बुझा जाना सब कर। सिनार भाई भणी मैंने आ खाली सेतकी नुह से लोक 24:32 पद लिखाई जो जीशु बाटरे से आमास जाते शिष्य मान को धर्मशास्त्र दे विभिन्न धर्मशास्त्र उपमा दे बुझे जाते से कहले बाटरे आम जो प्रभु तक वाक्य दे बुझुले आमर हृदय कौन प्रज्वलित हो आलोकित हो नाला तेणु जो आम वाक्य शुणा आम आलोक पाइबा कारण प्रभुकर ए वाक्य ही आलोक कारण साम संगीत 119:105 लिखा तुम वाक्य मो शरण प्रदीप चला पथर आलोक ए बाइबल ही आलोक जदि गले आम अंधकार दूर हो। प्रेज द लॉर्ड। जय जीशु। स्नर भाई भणी मैंने तेणु तेणु आम विशेषकर आम आखि जदि खोलियापाई चाहूँ देखापी चाहूँ अर्थ बुझा चाहूँ ताहले सर्वप्रथम आम अनुतप्त होगा यज्ञ भाव में पाप स्वीकार कर दिव्य प्रसाद पाइबा दिव्य प्रसाद पाइबा द्वारा आम आखि खुलीज एवं वाक्य पढ़ा द्वारा आम आलोक पाइबा ताहले आम अनुताप पाइबा चेतना पाइबा एवं मन परिवर्तन प्रभु पाक जीवा प्रभु आमको आमको सांत्वना देवे एवं अनंत जीवन देवे। जय जीशु। प्रेज द लॉर्ड। आज साध्वी है साध्वी ब्रिडगेट ए साध्वी ब्रिडगेट विषय मु पदे कहवाई जाऊँगी कारण आम गोटे धारणा अच्छी जे खाली फादर माने सिस्टर माने साधु साध्वी हे आम विवाहित लोक अन्य माने हो पारे ना ये धारणा रही भूल धारणा। साध्वी ब्रिडगेट जहाँ आज आम जार पर्व आज पालन करूँ स्वीडेन से जड़े राजकुमार को बाहई एवं वैवाहिक जीवन 28 वर्ष जीवन यापन कलापर से विधवा हेले एवं सेत स्वामी मलर 8टा संतान संतति थे तन्मध्य गोटे झील साध्वी एवं से विधवा माँ साध्वी ब्रिडगेट विधवा हैला परे 8टा पिलार माँ हैला परे विधवा हेले एवं विधवा हैला परे मध्य से पवित्र जीवन यापन कले धर्मशास्त्र पढ़े भल जीवन यापन कले एवं सिस्टर को संघ स्थापन कले एभली जीवन यापन कले ईश्वर विश्वास कले जे सी मृत पर साध्वी भाव में ब्रिडगेट को साध्वी भाव में घोषणा करागला खाली ताकू नुह तार गोटे झील को साध्वी बोली घोषणा करागला तारी संगे से मिसी तार अर्थ है विवाह खाली फादर माने सिस्टर माने जे साधु साध्वी हे ताहा नुह विवाहित लोक माने साधु साध्वी हेबार 100% चांस अच्छी कारण विवाह एक पाप नहीं कारण परमेश्वर आदि पुस्तक 2:18 परमेश्वर निजे कहले मनीष एका एका रहिबार भल नहीं ताको गोटे जीवन साथी देबा एवं विवाह से एवा नारी को तैयार कर दिला अब्राहम आदम को पाई एवं आदम को एवा को स्वयं परमेश्वर आदि पुस्तक 1:28 विवाह आशीर्वाद कहले जो तुम्हें फलवंत हो बहु गुणित पूर्ण हो तामने संतान सहित तुम्हें प्रसव करो सारा पृथ्वी को पूर्ण करो एटा परमेश्वर योजना। तेणु आम पवित्र विवाह संस्कार बंधन जदि आम छुआ पिला पाइबा संतान संतति करवा परिवार गठन करवा कौन सी प्रकार पाप नहीं कि विवाह जदि आम बाइबल वाक्य भित्तिक संस्कार भित्तिक जीवन यापन करवा ताहले विवाहित लोक माने साधु साध्वी हेबार यथेष्ट चांस अच्छी 100% आशा रही कारण इंग्लिश गोटे प्रवाद रही एवरी सेंट हैड ए पास्ट एवरी सिनर हैज ए फ्यूचर अर्थात आज जो मैंने साधु साध्वी घोषणा से अतीत अनेक पापी थे मन परिवर्तन कर साधु अगस्तिन कथा शुणु से महापापी थी माँ आपणकर मणिका 18 वर्ष धरी प्रार्थना करी मन परिवर्तन करे पूरा परिवर्तन हेले फादर हेले विराट साधु
every sinner has also future. आमे आज पापी आमर भविष्य अच्छे अर्थात आम पाप परित्याग कर मन परिवर्तन कर जदि ईश्वर वाक्य भित्तिक संस्कृति जीवन यापन करवा आमे माने मध्य साधु साध्वी हेबार आशा 100 भाग चांस रही। तेणु सेनार भाई बहन संक्षिप्त कहूँ चाहे जे ए बाइबेलटा स्वयं पवित्र आत्मा प्रेरण लिखा जाइए। ए बाइबेल गभीर अर्थ बुझापी ए बाइबेल प्रकृत झील बुझा हेले आम से पवित्र आत्मार सहायता जब पढ़ा ताहले प्रकृत अर्थ बुझा। कारण जॉन 14:26 लिखाई पवित्र आत्मा आम शिक्षक जो से पवित्र आत्मा आम निकट को आसवे से समस्त विषय को शिक्षा देवे बोली स्वयं प्रभु जीशु शिखे एवं से पवित्र आत्मा सहायता आम पढ़ले आम बाइबेल गभीर अर्थ बुझा। एवं बाइबेल गभीर अर्थ बुझले बाइबेल आलोक आम निकट को आसले आम अंधकार दूर हे एवं वाक्यभित्तिक संस्कृति जीवन यापन कर योग्य भाव में विशेष कर दिव्य प्रसाद पाइले दिव्य प्रसाद पाइबा द्वारा आम आत्मिक आखि जो अंध होती शैतान जो अंध कर आखि खोलीज एवं आत्मिक जीवन पाइब एवं बाइबेल गभीर अर्थ स्वर्गराज्य गुढ़ रहस्य आम जाना सक्षम हो। तेज स्नेहर भाई भाई मैंने आज टॉपिक है बाइबेल गभीर अर्थ बुझार बाट। बाइबेल गभीर अर्थ बुझार बाट है आम पवित्र आत्मा सहायता पढ़ा प्रसाद पाइबा जीशु प्रभु भोज पाइबा प्रभु आम बाट खोलीदेवे ताहले आम निश्चित बाइबेल प्रकृत अर्थ बुझा। आमको उपमा दरकार नहीं कि छवि बही दरकार नहीं कि मूर्ति दरकार नहीं। एथिपाई आमर कैथोलिक भाई माने आमर फादर माने विभिन्न मूर्ति रखती विभिन्न फोटो रखती जिनती जो मैंने बाइबेल न पढ़ा लोक मूर्ख लोक मैंने अशिक्षित लोक मैंने से फोटो देखी देखी मूर्ति देखी देखी प्रभुंर गूढ़ रहस्य बुझीपारे से आमर कैथोलिक धर्म में मूर्ति रखा जाए विभिन्न छवि रखा जाए किंतु ताको अन्य मंडल को ग्रहण न करी विभिन्न परिहास करते परिहास जहाँ करूँ आम शिक्षा बोल से यथेष्ट। तो स्नेहर भाई भाई मैंने आउ थे शेष में मुझे आज प्रसंग है बाइबेल गभीर अर्थ बुझार बाट आम से पवित्र आत्मा सहायता आम शिखा द्वारा आम सब बुझीपार। तेणु स्नेहर भाई भाई मैंने आप समस्ते गुड हियरिंग देथिबारु समस्त धन्यवाद दे रही। जय जीशु।